ممتی بیگم نے وصیت کر دیتی کہ سارے سلطان بیگ نے کہ معافی رجوع بھی کر لیا تو انہیں کیا معافی مانگ لو، حالانکہ سلطان بیگ نے کدی کوئی ایسی گل نہیں کہی. تو اس طرح دیا گلاں کچھ انہوں نے مصروفیت ریفرنس دینا چاہیے نا پھر خرم نو رانے نو. علامہ اللہ اس طرح انہوں دے جواب وچ پھر علامہ صاحب نے کوئی ویڈیو بنائی ہے جہدے پھر جواب الجواب وچ انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا تے او دا ثبوت لیاؤ. اے گل کر رہے ہیں کچھ جی ایتھے لائیو گل کرا دیو کدھرے براڈ تے کسی بھی کہ بھئی اے جواب ہے تے اونوں رانے صاحب بھی جواب دین اپنے کہ بھی کی ریفرنس ہے جدے مطابق تو گلا اے وچ کوئی نجائز لفظ نہیں. تسی سنو گے تانوں پتہ لگ جائے گا انہاں کی مطالبہ کیتا ہے تے کی والا ہے کی انہاں والا منگیا میرے کو. خرم نصیر رانا صاحب کی ویڈیو ملی ہے جس میں وہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حوالہ دے دو جو تم نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے تو میں تمہیں منہ منگا انعام دوں گا. اور وہ حوالہ جو مجھ سے طلب کر رہے ہیں پہلے ان کی زبانی ہی سن لیتے ہیں پھر وہ حوالہ ان کے آگے رکھ دیتے ہیں. پہلے ویڈیو بنائی جس کے اندر میں نے بتایا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی محمدی بیگم کے حوالے سے پیشن گوئی ٹائم لائن کے حساب سے کیسے چلی اور کس طرح سے وہ پوری ہوئی. اب اس ویڈیو کے اوپر رسپانس دیتے ہوئے عامر نذیر نے اس قدر جھوٹ سے کام لیا. میں باقی ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، ان سے صرف ایک بات کا میں حوالہ مانگتا ہوں. اگر عامر نذیر صاحب اس ایک بات کا حوالہ دے دے تو میں ان کو ان کے منہ منگا انعام دوں گا. سنیے گا ذرا. علامہ عامر نذیر کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا احمد بیگ جو کہ محمدی بیگم کے والد تھے ان کی زمین حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے تصرف میں تھی، اور جب مرزا احمد بیگ اپنی وہ زمین واپس لینے کے لیے وہ کاغذات لے کر مرزا صاحب کے پاس گئے کہ آپ ان کاغذات پر دستخط کر دیں، تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس زمین کو واپس کرنے کے لیے شرط یہ رکھی کہ مرزا احمد بیگ اپنی بیٹی محمدی بیگم کی شادی مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے ساتھ کر دے تو وہ ان کو ان کی زمین واپس کر دے گا. اور یہ کہا علامہ عامر نذیر صاحب نے. اور عامر نذیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے اپنے قلم سے اپنی کتاب میں لکھ دی. تو عامر صاحب آپ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ وہ حوالہ مرزا صاحب کی اپنی کتاب کا ان کے قلم سے لکھا ہوا پیش کر دیں جس میں یہ بات منو ایسے ہی لکھی ہو جیسے آپ نے بیان کی ہے، تو میں آپ کو آپ کے منہ منگا انعام دوں گا. جی منہ منگا انعام تیار کر لیں. حوالہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا ہے. یہ حوالہ ہے آئینہ کمالت اسلام کا، روحانی خزائن کی 5ویں جلد ہے، صفحہ اس کا 285 ہے. اس میں آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نام بردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی. غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخبر ہے. اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے یعنی جو ہمارے تصرف میں ہے. نام بردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی. اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپور میں جاری ہے، نام بردہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب علیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو 4000 یا 5000 روپیہ کی قیمت کی ہے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں. چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا. چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب علیہ نے تمام تر عز و انکساری ہماری طرف رجوع کیا تاکہ ہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں. اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن خیال آیا کہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہماری عادت ہے استخارہ کر لینا چاہیے. یہی جواب اس کو دیا گیا مکتوب علیہ یعنی احمد بیگ کو. پھر احمد بیگ کی اصرار سے استخارہ کیا گیا. استخارے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ ہمیں خدا نے یہ کہا ہے. اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلام کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت ان سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا. کس شرط سے کیا جائے گا؟ کہ تم اپنی دختر کلام کا نکاح ہمارے ساتھ کرو گے. آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وحی کی کہ میں اس سے اس کی بڑی لڑکی کا رشتہ مانگوں. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنِ اخْطُبَ صَبِيَّتَهُ الْكَبِيرَ لِنَفْسِكَ وَقُلْ لَهُ لِيُصَاهِرَكَ أَوَّلًا ثُمَّ لِيَقْتَبِسَ مِنْ قَبْضِكَ کہ اللہ نے مجھے وحی کی کہ اللہ نے مجھے وحی کی کہ میں اس سے اس کی بڑی لڑکی کا رشتہ مانگوں اور اسے کہوں کہ پہلے وہ مجھے اپنا دماد بنائے پھر تمہارا مال حاصل کرے. وَقُلْ إِنِّي أُمِرْتُ لِأَهَبَكَ مَا طَلَبْتُ من الارض وارضا اخرى معها واحسن اليك باحسانات اخرى
अला अन तनकिहनी इहदा बनातिक अल्लती हिया कबीरतुहा व ज़ालिका बैनी व बैनक फ़इन क़बिलता फसतजिदुनी मिनल मुतकब्बिलीन। कह दे कि मुझे हुक्म दिया गया है कि जो ज़मीन वो हिब्बा में तलब करता है वो उसे दूं, और उसके अलावा और ज़मीन भी, और उससे एहसान से पेश आऊं दूसरे एहसानात के साथ, लेकिन इस शर्त पर कि वो अपनी बड़ी बेटी का निकाह मुझसे कर दे, और ये कि ये बात मेरे और इसके दरमियान राज रहे, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इस बात को पर्दे में भी रखना है, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ये उन्होंने भेद खोल दिया, उन्होंने खत छपवा दिया नूर अफशां में। मिर्जा साहब ने तो कहा था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लो जी कुरैन नसीर राणा साहब, आपके मुतालबे पर मिर्जा साहब के अपने हाथ की लिखी हुई तहरीर आपके सामने रख दी है। किसी मलफूजात का हवाला नहीं, सीरतुल महदी का हवाला नहीं, किसी और किताब का हवाला नहीं, सीरतुल महदी या जिक्र हबीब वगैरह में से हमने हवाला नहीं दिया। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपने कहा कि भाई जो तुम कहते हो मिर्जा साहब की अपनी तहरीर पेश करो। लो जी मिर्जा साहब की अपनी तहरीर आपके सामने पेश कर दी है। लो जी सैनी साहब, आपसे सिर्फ यही मैंने पूछना था कि जो आपने उनकी बात सुनी है, जो उनका मुतालबा सुना है, क्या वो मुतालबा पूरा हो गया है? नहीं, अपना अल्लामा साहब उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा, क्योंकि मिर्जा साहब के जेर तसर्रुफ जमीन थी अहमद बेग साहब की, उन्होंने वापस मांगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अपनी बेटी का मुझे रिश्ता दे। हकीकत जो आपने पढ़ी आयना कमलात इस्लाम से वो ये है कि वो हिबा था। हिबा और जेर तसर्रुफ में एक फ़र्क है, ठीक है। वो हिबा का मामला था, और फिर हजरत मिर्जा साहब ने ठीक है रिश्ता मांगा, उन्होंने इसमें अपने ज़ाती नफ्स की बात नहीं की। ये कहा कि मुझे खुदा ने ये हुक्म दिया है, ऐसा हो तो मैं तुम्हारे तक हुस्न सलूक करूं। जिस तरीके से आपने बात को प्रेजेंट किया है कि भी जेर तसर्रुफ थी, उन्होंने कहा मैं तेरी ज़मीन ऐस शर्त वापस करांगा कि तू जड़ा ना अपना मैनू रिश्ता दे दे। हाँ। अगर आपने ऐसे ही कहा होता कि भी इसमें हजरत मिर्जा जो हिबा का चक्कर था, और उसके बाद मिर्जा साहब ने कहा कि मुझे खुदा ताला ने वही की है कि मेरी शादी जो है जब तक ना हो अहमद बेग की बेटी के साथ, उस वक्त तक ये हिबा जो है इस पे साइन मत करना, तो फिर आप ठीक थे। लेकिन आपने जिस तरीके से मजमून बयान किया ना, उसमें गलत बयानी है। नहीं, रुक जाए आप। आपको ये सारी गलतफहमी इसलिए लग रही है कि आपने खुर्रम नसीर राणा साहब की आवाज में बात सुनी है। मैंने ना ये तसर्रुफ का कहा है, ना मैंने जमीन वापस करने के अल्फाज बोले। ये आपने मेरी वीडियो वो देखी नहीं है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने ना ये कहा है कि वो मिर्जा साहब के तसर्रुफ में थी, ना मैंने ये कहा है कि वो वापस की मिर्जा साहब ने। मैंने असल में जिस तरह बात बयान की है ना, वो उन्होंने थोड़ा सा उसको अपने लफ्जों में बयान किया है, लेकिन ये तसर्रुफ वाला और उनके ज़हन में ये है कि इस तरह की बात मिर्जा साहब ने अपनी किताब में कोई नहीं लिखी कि मिर्जा साहब ने इस शर्त पर जमीन के कागजात पर दस्तखत करने का वादा किया था। ये तसर्रुफ वाली और वापस वाली तो मैंने बोली नहीं है बात। उनकी ख्वाहिश ये है, मुतालबा उनका ये है कि तुम्हारा ये कहना है कि मिर्जा साहब ने दस्तखत करने के बदले में उससे बेटी का रिश्ता मांगा, और ये बात मिर्जा साहब ने अपने कलम से अपनी किसी तहरीर में लिखी हुई है। ये हवाला पेश करो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूं। ये है पूरी बात। तो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा मनोअन, जैसे उन्होंने बोला। अभी आप ये कह रहे हैं मनोअन तो आपने सुना नहीं ना, वो तो इनकी जुबान से होगा ना। हाँ, तो फिर ये बात है ना कि उन्होंने इस चीज की शर्त रखी है। नसीर राणा को एग्जैक्टली वही अल्फाज बोलने चाहिए, और जो के अलामा साहब ने कहा, और उसके बाद पूछे। बिल्कुल। अभी ये जो है ये नल एंड वॉइड चीज हो गई है। कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये आप समझ रहे हैं कि उन्होंने तसर्रुफ का और वापसी का जो है ना किया है, इस पर एतराज आपने नहीं बोला। ये नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। उनका ये एतराज भी नहीं, उनका ये एतराज भी नहीं है। उनका जो सवाल है ना, वो सिर्फ ये है कि ये तुमने कहानी सुनाई है घर के, और इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं कि मिर्जा साहब ने रिश्ता मांगा था जमीन के कागजात पर दस्तखत करने की शर्त पर बदले में। ये है उनका असल, वो जो अल्फाज है ना, वो तो मैंने बोले ही नहीं है, वो तो मसला नहीं। लेकिन उनके पास एस्केप रूट है ना, क्योंकि उन्होंने मनोअन का लफ्ज बोल दिया है। अगर वो ये वो उनके पास ये एस्केप रूट आ जाएगा, वो आपको कहेंगे अगर वो ये लफ्ज बोलेंगे,
अगर वो ये ला दो ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ओ भाई साहब कौन है ये, क्या हो गया? मन सब्बा नबियन फक्तुलू फक्तुलू। ऐसा नहीं साहब, जरा गल कर लें दे, म्यूट करे जरा। मैं क्या भी, अगर वो ये एतराज करते हैं ना कि ये मैंने जो कहे थे लफ्ज तुमने वो नहीं दिखाए, तो ये तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मैंने कहे ही नहीं है। आप इसके बारे में फिक्रमंद ना हो, इसको अगर छोड़ दें एक मिनट के लिए, क्योंकि इस पर मुझे यकीन है कि उनका एतराज नहीं होगा। उनकी जो ख्वाहिश थी वो सिर्फ इतनी थी कि ये जो तुमने बात सुनाई है अपनी वीडियो में, ये बात मिर्जा साहब की तहरीर से पेश करो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैंने वो पेश कर दी है कि नहीं कर दी है? जो तहरीर अभी आपकी जो वीडियो जो आपने कही है ना, जिसको सुन के खुर्रम नसीर राना साहब ने ये शर्त लगाई है, वो पहले सुननी पड़ेगी। फिर वो मैं सुना दूं तो मेरे पास ही है, वो तो दूर नहीं। अब आप हमें अच्छा इस मोहम्मदी बेगम के पेश हुई में मिर्जा बना रहे हैं ना मुरब्बी, ये सारी कहानी है, कहानी शरीफ है, इसके अंदर कुछ भी हकीकत नहीं है, लेकिन आप सुनते जाएं और देखें कि वो क्या कहना चाह रहा है। मिर्जा अहमद बेग साहब हिंदुओं की तरह और ईसाइयों की तरह अपना रवैया दिखाना शुरू हो गए थे, और वो कजन मैरिज को हराम समझते थे और कजन को हकीकी बहन भाइयों की तरह समझते थे, और इसके अलावा इस्लाम के बहुत सारे अहकामात का मजाक भी उड़ाते थे, और अमली तौर पर वो हिंदू हो गए थे और कुछ हिस्सा ईसाइयों का उन्होंने पा लिया था। तो सुन लो कैसे मिर्जाई इन बातों को डाइजेस्ट करते हैं यार। हिंदू हो गए थे और कुछ हिस्सा ईसाइयत का भी उन्होंने पा लिया था, हिंदू हो गए थे और कुछ हिस्सा ईसाइयत का भी उन्होंने पा लिया था। यानी इसको ये नहीं समझ आ रही कि मैं झूठ किस नाम पर बोलूं, उसको हिंदू कहूं या ईसाई कहूं, किस नाम को लेकर मैं झूठ बोलूं अपनी वीडियो में। हकीकत यह है कि अहमद बेग एक सच्चा और पक्का मुसलमान था, और मिर्जा कादियानी ने अपने खत में भी उसको एक मुसलमान कहकर मुखातब किया है, और बड़े उसको वास्ते दिए हैं इस्लाम के और खुदा के, और उसको यकीन दिलाने की कोशिश की है कि एक मुसलमान जब कसम खा लेता है तो दूसरा मुसलमान उस पर एतबार कर लेता है, तो आपके मतलब मेरा दिल साफ है, आप भाई हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारा झूठ है जो ये बयान कर रहा है, लेकिन आप आगे सुनिए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिर्जा साहिब को ये पैगाम दिया कि शादी का पैगाम भेजो मिर्जा अहमद बेग की बेटी के दिए, ताकि इस शादी के जरिए ये लोग दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। लेकिन अब ये नहीं बता रहा कि वो बेचारा अहमद बेग आया था जमीन के कागजात पर दस्तखत करवाने, और आपने उससे उसकी बेटी का रिश्ता मांगा कागजात पर दस्तखत करने के बदले में। खुद मिर्जा कादियानी ने लिखा हुआ है आईना कमालत इस्लाम में कि वो रोता हुआ है, गुर्बत का मारा बेचारा, उसका जिस्म कांप रहा था, और गुहार लगाता हुआ आया कि ये जमीन ये हमारा आखिरी सहारा है, अगर हमें ये जमीन मिल जाए तो हमारी ये गुर्बत दूर हो सकती है, हमारे मसले हल हो सकते हैं, हमारी मदद की जाए, सिर्फ आपके दस्तखत की जरूरत है, हमें जमीन मिल जाएगी तो हमारी मदद हो जाएगी। मिर्जा कादियानी ने वो मदद करने की जो शर्त है वो ये रखी कि तुम अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मुझे दोगे तो मैं तुम्हारी ये मदद करूंगा, जमीन के कागजात पर दस्तखत करूंगा। ये नहीं बताएगा मरबी, कभी भी नहीं बताएंगे मरबी आपको, क्योंकि ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है, और मिर्जा इस पर कपड़ा डालना चाहते हैं। लेकिन तसर्रुफ इलाही ने उस शख्स से लिखवाया है आईना कमालत इस्लाम में कि वो मुझसे जमीन के कागजात पर दस्तखत करवाने आया था, मैंने बदले में उससे बेटी का रिश्ता मांगा। इंतहा तो उस वक्त हो गई थी जब अखबार नूर अगस्त सन 1885 के अंदर मिर्जा अहमद बेग ने ऐसा खत शाया कराया जिसमें इस्लाम को और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हुई थी, और इस्लाम पे शदीद किस्म के एतराजात किए हुए थे। ये भी झूठ है। चंद रोज पहले एक मरबी से बात हो रही थी, हमने कहा वो खत प्रोड्यूस कर दे, आपको मुंह मांगा इनाम दे देंगे। अहमद बेग ने कोई इस तरह का खत नहीं लिखा, ना वो किसी अखबार, इनको तो अखबार का भी नहीं पता। ये कह रहा है अखबार नूर, और वो मुरब्बी काशिफ मुरब्बी कह रहा था चश्मा नूर प्रेस है, छापा खाना था, उसके अंदर अखबार नूर अफशान छपता था, उसकी वो बात है। लेकिन इनको पता कुछ नहीं है, इन्होंने बस पंचर लगाने हैं, पर्दे डालने हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इन जराइम पर। फिर अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह का ये तरीकाकार इख्तियार फरमाया कि जैसा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हजरत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन थी, उनके कौम और कबीले की अल्लाह ताला ने इस्लाह फरमाई थी, इसी तरह से हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के जरिए से मिर्जा अहमद बेग के खानदान की इस्लाह अल्लाह ताला करना चाहता था, और इसके लिए अल्लाह ताला ने मिर्जा साहिब को हुक्म दिया। मैं क्या जरा रोकियो इत्थे अलामा साहब जी जी जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ हजरत मारिया किब्तिया ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਫਰਮਾਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਧਰੇ? हुसैनी साहब एक और बात, एक मिनट पास्टर साहब यार किसी ने और भी मौका दे दिया करो, एक मिनट यार, तेन मौका देना, सबर कर, तेरे को जल्दी बड़ी होंदी, हैंग ऑन,
अपना हुसैनी साहब जी जी ये जो करने वाली गल फिर यार 1 मिनट भाई चल कर लो हुसैनी साहब ये बताएं कि ये जो खुर्रम नसीर राना साहब ने बात की है कि वो काफिर हो गया था अहमद बेग और उसने खात्मे नाउजुबिल्लाह नबी करीम को, इसका कहीं वजूद है? कहीं कोई वजूद नहीं इसका, कोई बिल्कुल कोई वजूद नहीं। अच्छा चले मैं इस पे रिसर्च किसने खत लिखा? अहमद बेग साहब ने 11 भाई उन्होंने कहा। ओ मेरी बात सुने, ये एक झूठी बात करके इन वहां पे जब काशिफ ने ये बात की थी उस दिन, हुसैनी साहब भी ना बात को वन साइडेड करते हैं और वन साइड डिसाइड लेते हैं। वहां पे काशिफ साहब ने क्लियर कट कहा था कि अहमद बेग के लोगों ने, ठीक है, और ये वीडियो अमर नजीर ने अपलोड भी की हुई है। वहां पे इन्होंने काशिफ साहब पे चढ़ाई कर दी कि काशिफ साहब ने ये कहा है कि अहमद बेग ने खत लिखा है, ठीक है। अभी भी खुर्रम साहब ने ये नहीं कहा कि अहमद बेग ने लिखा है, उसने कहा वो छपवाया गया था, वो प्रेस से छपवाया गया था, ठीक है। ये उस दिन भी झूठ बोल रहे थे काशिफ साहब के ऊपर और आज भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं वो छपा हुआ खत किधर है? वो अखबार में जो भी है वो अखबार है। वो अगर मेरी बात सुने, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि छपवाया। अब बताओ वो झूठ लिखा हुआ है? कौन सी किताब है? अब हवाला उस दिन पढ़ के सुनाया था काशिफ साहब ने। क्यों हुसैनी साहब ये खत छपा हुआ है किताब? बात ये है, पहले तो बुनियाद नहीं समझ आ रही, कभी खत की तरफ जा रहे हैं, कभी। बात ये है कि वो लोग कौन थे, हमें ये तो पता है तो कि उसमें अहमद बेग नहीं था। हमारा जो है ना, हमारा मामला वो अहमद बेग के ऊपर अड़ा हुआ था ना उस दिन आपके साथ। काशिफ साहब पे इल्जाम जो आप लगा रहे थे वो यही लगा रहे थे ना, बात चलाई जाएगी या वैसे? तो यहाँ पे तो खुर्रम साहब भी नहीं है, तो यहाँ खुर्रम साहब से बात चलाई जा रही है। आप तो पुरानी बातें डिस्कस कर रहे हैं ना। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, यार एक रखा करें, यार सबके लिए एक रखा करें। जो बात अभी एक आई है जी कि मारिया किब्तिया के कबीले की इस्लाह हुई, तो पिछली बातें सारी भूल गई हैं। वहां पे तो आपने नहीं रोका कि ये बात सब कुछ भूल गई हैं। जहाँ पे वो मसीह मौत पे इल्जाम लगा रहे हैं वो आपने नहीं डिस्कस करनी, वो आपने डिस्कस नहीं करनी है। सब बातें भूल गई हैं, वो डिस्कस नहीं करनी। कोई भी नहीं करनी, कोई भी नहीं करनी। मुझे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि क्या ये बात सही है या नहीं सही, बस तो रही रहे। फिर हम आपको क्यों जवाब दें? आप चार, मैं तो आपसे जवाब मांग ही नहीं, चार जवाब मैंने आपसे कोई जवाब नहीं मांगा। सैनी साहब वो बात ठीक है आपकी, उसका बाद में सबसे पहले मैंने आपसे कोई जवाब नहीं मांगा। आप जवाब लगाए हैं, उनको छोड़कर पांचवी बात का ठहर जाओ हुसैनी साहब। सबसे पहले जो है ना, हमने ये बात साबित करनी है कि जो अहमद बेग था उसने नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो कुफर किया और काफिर हो गया था और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और कुरान करीम की तौहीन की और वो हिंदू मजहब में आ गया था। और उसके बाद ये सारा मामला छापा गया था। और हाँ जी, क्या ये हिंदू हो गया था और कुछ हिस्सा ईसाइयत का भी उसने पा लिया, ईसाइयत का हो गया था। और उसके बाद ये खत किसी अखबार में छपा जिसमें वो तौहीन किया। ये वो बातें आपने की है ना मुबारक साहब अहमद बेग के मुतल्लिक जी, ये बातें ना अहमद बेग ने कही है ना मिर्जा साहब ने कही है, पता नहीं कहां से आई है। हाँ तो वो फिर जिस बंदे ने की है उससे लेना चाहिए वो जवाब देगा ना, वो बात रहेगी। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, एक इल्मी बात है, अगर आप उसका कोई जवाब दे सकें या मदद कर सकें। नहीं दे सकते ना, वो उसी बंदे ने की है ना सारी। नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, वो हो गई ना। जिस बात का नहीं पता चल रहा वो उससे पूछ लेना उससे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक इसमें सवाल उठाया है कि मारिया किब्तिया के खानदान की जिस तरह इस्लाह हुई थी, तो क्या वाकई मारिया किब्तिया के खानदान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस्लाह की थी? ये वाकया ठीक है या नहीं? ये तारीख की बात वो तो मेरे ख्याल में तो वो जंग में आई थी। नहीं, कोई जंग में नहीं आई वो। नहीं वो तोहफे में मिली थी। वो तोहफे में मिली थी। वो मिस्र के बादशाह ने जो ताइफ भिजवाए थे, वो क्यों भिजवाए थे? 2 लड़कियां भिजवाई थी। नहीं, क्यों भिजवाए थे वो? किस वजह से भिजवाए थे? वो रसूलुल्लाह ने जो बादशाहों के एक दूसरे को खत जाते हैं,
सफारती तलकात होते हैं, उनकी बातें एक्सचेंज होती हैं। रसूलुल्लाह ने भी कोई तोहफे भेजे होंगे। रसूलुल्लाह की शान तो एक बादशाह की थी ना, जब आपने खतूत लिखे थे बादशाहों को। नहीं तो जाहिर है कि वो रसूलुल्लाह के पैगाम को उन्होंने वेटेज वैल्यू दी तो तोहफा भेजा ना, तो ठीक हो गया। मैं हाँ तो यही बात खुर्रम नसीर राना कह रहे कि उनकी कुरेक्शन हुई, उन्होंने नाउजुबिल्लाह नहीं कुरेक्शन क्या, वो क्या कुरेक्शन हुई यार, क्या बात। ये जो पैगाम था नबी करीम का, खत लिखा उनको, सफारती खत लिखा, सफारती खत लिखा अपनी मौजूदगी का, जो सफारतें होती हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने तोहफा तहफ भेजे, फिजिकल तोहफे भेजे, जिसमें 2 लड़कियां भेजी। तो ये लड़की के आने के बाद इस्लाह हुई या लड़कियों के, और लड़कियां तो वैसे ही तोहफे में भेजी उन्होंने, जिसका क्या ताल्लुक है उससे? नहीं उन्होंने खत, देखो ना बात सुनो, जब कैसर और किसरा को रसूलुल्लाह ने भेजी ठीक शुरू स्टार्ट में, तो उन्होंने तो फाड़ के परे फेंक दिया कि ये कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये जब भेजा गया तो जाहिर है कि ये मतलब इनके आने के बाद भेजा गया, इनकी वजह से इस्लाह हुई, मारिया किब्तिया की वजह से। नहीं इसमें हरगिज़ क्या रोल है उसमें? बिल्कुल ठीक है ये आपकी बात, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं, मारिया किब्तिया का क्या रोल है? नहीं ये रोल नहीं है जो आप कह रहे हैं, या खुर्रम नहीं, जो उन्होंने कहा कि मारिया किब्तिया की वजह से इस्लाह हुई। मैं रोल काट देना तुहानू, मैं रोल काट देना सुन लो। रोल ये वे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियां तो उत्ते शादियां कीतियां ने ना, ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਲੁਕਾਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ? ਸੌਰੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਗਾਮ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪੈਗਾਮ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਲਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਆਰਫਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बम्बास्टिक साहब, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਸਰਫ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है, वो आप मुझे मेरे इनबॉक्स में भेज दें, जो आपकी वीडियो मैं दोबारा सुनूंगा। दोबारा सुन लो, मेरा जड़ा अकाउंट 285 पढ़ लो, जिल्द नंबर 5 दा ते सारी गल पता लग जाएगी जी। केड़ी सानू अपने अलामा साहब भेज दो, मैं रेफरेंस क्या हुसैनी साहब? जिल्द नंबर 5, जिल्द नंबर 5, सफा नंबर 285, दफा नंबर 285, जिल्द 5, ठीक है जी। आइना कमालत इस्लाम किताब, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। मेरा सिर्फ इन्ना ही सुनाने का मतलब सी, गल लंबी हो गई है, तुसीं गल करो। मैं सिर्फ इन्ना ही पूछना चाहता सी बई, मैं तो इहो जी कोई गल कीती नहीं है। जिहड़ा उन्होंने मुतालबा कीता, उन्होंने मुतालबा पूरा हो गया है, हुण मूँह मंगिया इनाम मेरा हक है या नहीं है? क्योंकि उन्होंने आख्या कि ये तू उन्होंने मिर्जा साहब की तहरीर च वहा दे, तू एडा वड्डा झूठ बोलिया कि खुद मिर्जा साहब ने अपने कलम नाल अपनी तहरीर नाल गल लिखी है, तो पेश कर दे, तो मैं तेनों मूँह मंगिया इनाम देंगा।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੈਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ 285 ਸਫੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ 573 ਸਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਫੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਦਜਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਅਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी जरूर करें। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਹਫਿਆਂ ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਬਤੀ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਅਲਕਿਬਤ, ਕਿਬਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀਖ ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਜ਼ਨ ਮਸਨ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਕਿਬਤ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਕਿਬਤੀ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਹਲਤ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਦਾ ਜਵੇਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਦਾ ਜਵੇਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੇਵਰਟ ਸਾਹਿਬ ਸੈਦਾ ਜਵੇਰੀਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਾਰੀਆ ਕਿਬਤੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। राजपाल की किताब तो पता है कौन लिखता है, कौन करता है? ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। फिर आपने आशिया शुरू कर दिया। बात करने दें। अच्छा अंकल, ये वाली वीडियो मैंने भी जब कल सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये खुरम भाई ने क्या बात की है। ये तो हमने लाइफ में कभी नहीं सुना और ऐसी कोई खबर भी नहीं है। जमारिया वाला किस्सा भी हमें मेजॉरिटी लोगों को पता ही है जो थोड़ा पढ़ते हैं उनको शुरू करना। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे लगता है कि खुरम भाई यहाँ पे ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, नाम की गलती हो रही है या एक्सप्लेनेशन में थोड़ा डिफरेंस आ गया। इसलिए अब मैं चूँकि करीब रहता हूँ, हमारी अक्सर जुमे की नमाज पे या दीगर नमाजों पे हमारी मुलाकात हो जाती है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार खुरम भाई मैं आपकी एक वीडियो देखी है और अल्लामा साहब उस पर इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं और ऐसा कोई वाक़या है आपने क्या किया, हमने तो कभी नहीं सुना। तो उन्होंने स्ट्रेट वे मुझे बोला कि यार मेरे से नाम में गलती हो गई है ना, मैंने नाम ये से मैं कहा मुझे लग रहा था, मुझे अंदाज़ा था कि आपसे कुछ हुआ है। तो मैंने कहा अब एक्चुअल बात क्या है, तो वो कोई मुझे बताए। तो उन्होंने भी हज़रत जवेरिया का जिक्र किया कि उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी हदीस हैं हज़रत जवेरिया के मामले में वो इससे रिलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे एक हदीस भी भेजी जो कि अभी मेरे पास उन्होंने भेजी है, जो मैंने पहले नहीं पढ़ी कभी, मैं भी अभी पढ़ूंगा, मुझे मेरे लम्बे नहीं है, ठीक है। वो वाला तो मामला देखते हैं कि इनको किसी वजह से लगता है कि ये वाक़या उससे रिलेट करता है। हज़रत जवेरिया का जो वाक़या है उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है सारी कहानी, कुछ भी नहीं। हो सकता है अंकल आप सही कह रहे हो सकता है आप सही कह रहे हो, मगर वो भी मतलब उनको ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੇ ਜਵੇਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ੀਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੋੜੇ ਪੈ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ है। ये हर पास मेरी अभी फोन पे बात हुई है, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं करना तो आप उसके लिए भी आप आजाद है ना करें। हाँ जी, फोन साढ़े को भी उन्होंने आया थी भी करना है। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराजगी वाली मेरे साथ कौन सी नाराजगी वाली बात है आपकी? मेरे से क्यों नाराज हो रहे हैं आप? क्या हुआ है?
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। वो मैंने उनको ये किया कि आप आ सकते हैं, तो वो मसरूफ़ हैं, थोड़ा भी आ नहीं सकते, मगर आपकी भी उन्होंने वीडियो सुनी है जिसके जवाब में भी वो कुछ रेफरेंसेस देंगे जो कि जब भी उनको वक्त मिलेगा वो करेंगे। नहीं, ये वाली जो अभी मैंने उनका जो मुतालबा पूरा किया इसको भी उन्होंने देख लिया है। आई थिंक सो देख लिया, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैं भी एक जवाब दूंगा उनको। आपके जो क्वेश्चंस उसमें रेज हुए हैं उसके नहीं, उसको क्वेश्चन वाली तो पिछली वीडियो है ना। अभी जो उन्होंने कहा क्वेश्चन उन्होंने सारे एक साइड पे रख के उन्होंने कहा इसने बड़े झूठ बोले अमर नजीर ने बीच में, मैं सिर्फ एक झूठ का उससे तकाजा करता हूँ, इसका मैं उससे मुताबिक कोई नई अगर वीडियो आई है तो वो मैंने अभी नहीं देखी, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। आपने जो फोन किया है, एक मिनट लावा साहब, मोहम्मद साहब आपने जब फोन किया तो उन्होंने क्या कहा खुर्रम रशीद कि मुझसे गलती हुई है वीडियो में? हाँ, मेरे से नाम में मिस्टेक हुई है। तो उन्हें कहें कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो होशो हवास से बनाया करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे चाह रही है बात है ना। नहीं ठहरे, मैं मानता हूँ इस बात को। मुबाशिक साहब मुझे पहले वाली बात मुकम्मल कर लें यार, बीच में फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्या फायदा है यार इस बात से। हम इंसान हैं, हम सही काम भी करेंगे, हमसे गलतियां भी होंगी, गलती एडमिट भी करेंगे, उसकी दुरुस्तगी भी होगी, ऐसे ही इंसान रहते हैं यार दुनिया में। ठीक है। वो जो पहले वाली बात है उसमें जो है ना कि चलो उसका जवाब उनका, अगर उन्होंने ये कहा है कि वो नाम में मुझसे गलती हो गई तो वो क्लियर हो गई बात कि वहां तो कोई ये अप्लाई करती ही नहीं, बात खत्म हो गई ना बात। मैं भी यही कह रहा था कि किब्ती कबीले की इस्लाह उनकी वजह से हुई, कोई ऐसी बात हुई कुछ भी नहीं, कोई वजह नहीं है उसमें। अब आ गया जुवैरिया, वो वाली हदीस पढ़ने से पहले अंकल मिलके पढ़ते हैं, मैंने भी नहीं पढ़ी कि उसमें क्या वाकया है जिस पे उनको लग रहा है कि ये रिलेट करता है, उसको बाद में पढ़ते हैं। मैं जो पहले वाली अर्ज करना चाह रहा हूँ ना कि उसके फादर के बारे में कि वो काफिर है, वो बहुत बुरा है, मगर इसके कहा गया वीडियो में, मगर इसके बरक्स हुजूर ने लिखा है कि वो तो एक नेक आदमी थे। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें ये वाला जो सारा वाकया है, सारा सिनेरियो है, आज हज़रत साहब मौजूद नहीं है, उन लोगों में से जो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उनमें से कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। हमारे पास क्या है, सफ़ेद सफ़ों पे लिखी हुई काली स्याहियाँ जिससे हम कुछ नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो अलामा साहब का जो पढ़ने का तरीका है उसमें उन्होंने सिर्फ उनकी गलती निकालनी है, उसमें से सिर्फ बुराई की चीज़ ढूंढनी है। और एक अहमदी का काम जो पढ़ता है तो वो उसमें से एक पॉजिटिव पहलू लेने की कोशिश करता है। अगर वो मौजूद होते तो जाके हम पूछ भी लेते। तो ये जो काफर वाली बात है ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के दिन में मैं 100 दफ़ा सुनता हूँ ये मुर्ताद है, ये वो, कि किसी एक पॉइंट पे किसी एक मौक़िफ़ में अकीदे में थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ तो वो लोगों को काफर समझने लग जाते हैं। ये दिन में अक्सर लोग एक दूसरे को बना रहे होते हैं, हालांकि होते मुसलमान ही हैं। तो हजूर भी उनको मुसलमान ही कह रहे हैं, उनके भाई हैं, मगर उनके कुछ ख्यालात या कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल इस्लाम से अपोजिट है। जैसे कज़न मैरिज पे उन्होंने ये इस पे लिखा हुआ है, इस पे बात उन्होंने की हुई अपनी किताबों को कि इस पर एतराज़ करते थे, तो इस मानों में ही हम लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं समझ कि वो बिल्कुल काफिर समझते थे, बिल्कुल बाहर थे। उनके नाम बता रहे हैं वो मुसलमान है सारी फैमिली के, सिर्फ ये जो बुनियादी इख्तलाफात या कुछ चीज़ों में डिफरेंस की वजह से एक दूसरे को काफिर शुरू हो जाते हैं ना, तुम्हारा ईमान खतरे में, ये उस तरह की बात मैं समझता हूँ। अच्छा हुसैन साहब आपने बात करनी है कि मैं जवाब दूँ? जी आप करें। नहीं, अगर आपने करनी है, मैंने सिर्फ इतना ही कहना है कि मैंने तो पूरी तरह बात असल में सुनी भी नहीं है कि क्या है। हाँ, मैं मिर्जा साहब की किताब से मैंने टच नहीं किया, मैंने उनकी वीडियो देखी तो वीडियो को जवाब दिया है, और वीडियो में जो उन्होंने लफ्ज बोले हैं कि वो हिंदू हो गया था और उसने कुछ हिस्सा ईसाईयत का पा लिया था, वो मुकम्मल तौर पर हिंदू हो गया था और कुछ हिस्सा उसने, अभी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो कहते हैं मैं प्ले कर देता हूँ आपको, जो उन्होंने बोला उसी पर मैंने सवाल उठाया कि ये क्यों झूठ बोल रहे हो, हिंदू हो गया था और कुछ हिस्सा ईसाईयत का। ये तो मिर्जा साहब ने भी नहीं लिखा हुआ। तो आप सही कह रहे हैं, आप बचा कह रहे हैं, और इसमें खुर्रम भाई भी इसमें कोई मुकाबला नहीं है, जो बात सही नहीं है रिकॉर्ड को सही करने वाली बात है। कोई ये नहीं कह रहे हैं कि फलां चीज होगी, जो सही है वो सही है, जो नहीं सही वो नहीं। अब ये बच्चे आपके सुनेंगे कल को आपके बच्चे वो तो यही समझेंगे कि वो हिंदू हो गया था, ईसाई या ईसाई हो गया था, तो इसकी करेक्शन करवानी चाहिए। ये दोनों बातें आप सही कह रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज अगर वो ये यहाँ की रिकॉर्डिंग ये इस तरह पहुंचेगा तो मेरे ख्याल से वो मजीद अपनी तहकीक में बगैर सोचे समझे नहीं बोल पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हाँ, और बाकियों को भी पता चल जो वाकया है ना हज़रत जुवैरिया का, उनका नाम था बर्रा, और वो जो माले गनीमत था उसकी तकसीम में वो एक सहाबी थे कैस, उनके हिस्से में आई थी, उनके साथ उन्होंने मुकातबत कर ली थी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि मैंने मुकातबत कर ली है तो मुझे ये पैसे दें। अब इस बात का
ایک لڑکی کا خود آنا رسول اللہ سے اس کا بات کرنا اور ایک لڑکی کے باپ سے رشتہ مانگنا، دونوں میں کوئی نسبت ہے؟ نہیں، ایسے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات اتنی بات ہے کہ وہ دو باتیں مختلف ہیں، اور ایک جگہ رشتہ ہو جانا اور ایک جگہ رشتہ نہ ہونا، دونوں میں نسبت کوئی نہیں۔ تو ویسے وہ حدیث وہ کہہ رہے ہیں کہ اور رسول اللہ نے اس میں کوئی پیش گوئی نہیں کی اس رشتے کے متعلق کہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یہ ہوگا، ایسی کوئی پیش گوئی نہیں ہوتی۔ نہ اس میں اس طرح کی کوئی ریزمبلنس نہیں ہے، مگر جو نیریٹو لیتے ہیں نا کہ ان کی خیالات اس طرح کے ہو رہے تھے، اسلام سے ہٹ رہے تھے، تو ان کی اصلاح کے لیے اس طرح کا پہلو ضرور ملتا ہے کہ اس قبیلے کی جویریہ کے سینیریو میں ان کا کہنا ہے بھی حدیث پڑھتے ہیں، میرا فون ہیٹ اپ ہو گیا، میں سپلٹ سکرین نہیں کر پا رہا، اگر میں حدیث دیکھوں گا تو مجھے بیک پہ جانا پڑے گا اور شاید میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، تو بھائی تھوڑا اس کو اے سی کے آگے رکھا ہے، کول ڈاؤن ہو جائے تو سپلٹ کر کے وہ حدیث پڑھتے ہیں، کیا ہے اس میں نا۔ اچھا وہ چلیں، وہ تو ایک الگ موضوع ہے نا، پورا ہے نہیں سیدہ جویریہ کا اور یہ محمدی بیگم کے قصے کا زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی کمپیریزن ہے نہیں۔ لیکن بہرحال آپ جو دو باتیں آپ نے کہی ہیں نا، اچھی آپ نے پازیٹیو بات کی ہے، آپ ان سے کہیں کہ یہ کریکشن کروا کے اگلی ویڈیو ایک تو بنوا دیں، یا فون پہ ان کے ابھی لینا چاہیں تو فون پہ ان کی بات کروا دیں ہمارے ساتھ، اگر وہ یہاں کہہ دیتے ہیں تو لوگ جاب کے لیے نکل رہے تھے، اپنی جاب کے لیے نکل رہے تھے، تو وہ سارے ریفرنسز کے ساتھ ہی شاید کوئی بنائیں گے ویڈیو، تو ہر گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ چیلنج ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، آپ ہیں ہی ایسے، مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یار یہ بات ایسے ہے یا ایسے ہے، اس کو کریکٹ کرتے ہیں، ہم صحیح کرنا، بس علم حاصل کرنا مقصود ہے اور کچھ بھی نہیں۔ صاحب آپ نے بھی ایک چیلنج کیا ہے $1000 کا، جی اگر عامر نذیر صاحب نے کوئی گالیاں نکالی ہوں وہ لا کے دے دیں۔ میں نے یہ چیلنج نہیں کیا، میں نہیں کیا۔ چیلنج کرو، اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ میں نے کبھی نہیں کہی، کبھی نہیں کہی۔ اچھا حسین صاحب معذرت میں نے چھوٹی جی کرنی ہے معذرت دے نال نا، جی کرو۔ 2-3 دن تو بندے دو کہہ رہے نے وہ تہاڈی بلاکنگ لسٹ وچ نے، کل بھی میں یاد نہیں رہا تو موقع نہیں ملیا، تہاڈی بلاکنگ لسٹ چیک کر سکتے ہو؟ آہو کون نے کیا؟ ایک تے راجپوت ہے، تھلے میسج بھی پہ کردے نے، راجپوت DXB انہاں دا نام ہوے تے اوتے نا وہ ملکہ وکٹوریا دی شاید فوٹو لگی ہوے گی۔ اچھا ایک افضل صاحب نے افضل 786 AFZAL، میں تیسرے سانی صاحب دوست محمد نام دی آئی ڈی ہے، دوست محمد نام دی، ہاں جی دوست محمد نام دی آئی ڈی ہے، انہاں دا یوزر نیم نہیں مینوں پتا، لیکن دوست محمد انہاں دا سوری انہاں دا جڑا کوئی نہیں ہے دوست محمد۔ تسی کیڑا دسیا نام کی دسیا؟ افضل 786 تے راجپوت، افضل 786 نہیں، افضل 786 بھی کوئی نہیں میرے کو۔ سانی صاحب جڑے تواڈے انہوں ان بلاک کر چھوڑو، جڑے ہینڈ بلاک بڑے بابا لوگ جڑے نے وہ لامے دیندے نے، تسی کر چھوڑو ان بلاک، جڑا پھر دوبارہ حرکت کرے گا انہوں پھر بلاک کر لو، فی الحال سارے جڑے نا اے جڑا مرزا کانا زندیق زنیم خنزیر دجال اے ان بلاک کر دیں؟ نہیں کی کہہ رہے ہو؟ نہیں انہوں نے رہن دیو، میری گل سنو، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جڑا سارے ٹھیک ہے، جڑا کوئی ضروری ہوئے گا کر لیں گے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ویسے یار بھائی صاحب تانوں کی ضرورت ہے کہ تسی مشورے پہ دین دیو؟ اڈوال صاحب ایک باری منو باچی صاحب تانوں کی ضرورت ہے میرے کماں چ ٹنگ ڈان دی؟ میں گل تسی کہہ دے لکھ ہر کسے دے کماں چ بہت زیادہ تے میں منو بندے کہہ رہے نے فون کر کے کہ میری ان بلاک باڈی کراؤ، نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب کو ان بلاک کر دیں؟ نہیں تواڈے کول اجازت لے کے میں کرانی ہے؟ نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب کو؟ میں ہنے ہی وہ گل کر دینی منہ کالا کرن والی، چپ کر کے میرے سامنے گل کریا کرو۔ نہیں کر دو گا، جڑا پٹنا ہی پٹ لے، آ جا پھر، آ جا ہیں، آ جا پھر منہ کالا کرن والی، جڑا تو پٹنا ہے میں ننگا ہو کے کھلو جانے تے پٹ لے۔ یہ گلاں کر دے، بکواس کرنے لگا زیادہ میرے سامنے۔ نہیں ہر بندے دے نال پنگا، کوئی بندا منہ گل کڈ لے اینو موت پائی جاندی کہ ہاں وی فلانا بندہ گل کر رہا ہے۔ پاٹے خان ہے ایڈا وڈا، پاٹے خان کس نے تجھے بنایا ہے؟
ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ तो चंगा करता सी बहन चो तेरे जैसे अहमदियों का मुंह काला ही करना चाहिए ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਨਤ ਛੱਡ ਰਹਾ 1122 यार तू मुझे मिलेगा मैं तेरा और तेरे प्यो का मुंह काला साहब तू तो चुप कर इंसान बेगैरत ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਵਿੱਚ ब्लडी इडियट मिस्टर 11 भाई यार जानते हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ बकवास करता रहता है इसको पता नहीं किसने कहा कि तू बहुत बड़ा चौधरी है पिंड का ਉਹ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਏਡੇ ਲਾਂਤੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜਨਮੀ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ आपको बड़ा शौक है वैसे तमाशे देखने बेगैरत का बच्चा पता नहीं कैसे ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਮਲ ਕਰ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਮਲ ਕਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਲਣ ਡਿਆ ਕਰ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਮਲ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਮਲ ਕਰ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਲਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਲਣਾ ਪਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਸੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨੀਨੋ ਲਏਗਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨੀਨੋ ਲਏਗਾ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਿਆ ਕਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਗੰਦਾ ਰਿਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁੜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂ लेकिन हैरानी की बात है ਲਾਂਤੀ ਚੱਲ ਦਵਾ ਹੋ ਭੌਂਕਦਾ इस वक्त ये बड़वे इस तरह के ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਮਾਗ में छोड़ दे प्लीज ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है और उसमें कोई बात और सब्सटेंस नहीं होता आप छोड़ दे ये बात मेरे प्यो ने काला किया मैं भी कर रहा हूं तेरे जैसे लांतियों का मुंह काला आ मुझे मिल कहीं तू जमात अहमदिया की मस्जिद में आ तेरा मुंह काला करूंगा ताकि सबको पता चले कि तू कैसा मुनाफिक है सूअर का बच्चा है तू गंदा अंडा है तेरे जैसे अहमदी नहीं चाहिए हमें चल थोड़ा सा शादोले शाह का चूहा तू वस्ट है इन सरकारी मुसलमानों से बेगैरत ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ तुर गया ਛੱਡੋ ਪਤਾ ਹੁਣ ऐसी की तैसी नीचे सुन रहे ना सुने पंगा मेरे साथ मैं तुझे नंगा करके बेंचों वहां पे खड़ा करूंगा कि जहां पे तेरा सारे उतरेंगे वो नहीं है इधर 1122 उल्लू का पट्टा बहुत बड़ी बात निकाली है इसने बात है बेसिक ना छोड़ दे अब तो हुन वेख लो ना अहमदी गालां देण दे ते अमन जी चुप करके बैठा तो क्यों ना चुप करके बैठे वो पीछे क्यों इन्वॉल्व हो रिकॉर्डिंग चाहिए वो सही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं होनी चाहिए चीजें हैं उनके पास और है क्या तो हमारे पास क्या है ये क्या करके गया कि क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम लोग बताओ चले छोड़ देना हमारे पल्ले क्या बाकी बचा है बताओ क्या है ये भी ताहिर महमूद लगा लेगा अपनी ब्रांड ये बहुत बड़े डिफेंड करने आ रहे हैं और जमात को डिफेंड नहीं करो जो अहकामात है उनको मानो तुम में तो आपस में एक दूसरे के लिए सबर बाकी नहीं बचा तो बाहर तुमने कौन सी तबलीग फैलानी है तुम्हें किसने कहा कि तुम जमात का बोझ अपने कंधों पे उठा लो गलत वीडियो बनाते हो रेफरेंस के बगैर ना तुम्हें किसने कहा तुम वीडियो बनाओ जी और उसके बाद माफिया मांगते फिरो किसने तुम्हें ये ड्यूटी दी है जमात है ना पीछे एमटीए है ना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है टैक्सी चलाओ बस मुझे देखा कभी वीडियो बनाया चैलेंज किया किसी को कि मैंने कहा मैं तेन 1000 यूरो देना जो इस तरह की बात करता मैं उसको मुंह चपेट मारता हूं चल भाग जा इधर कि मेरे ना शर्त ला तो ये कर तो वो कर तुम्हारी औकात है नहीं शर्त लगाने की करो अपनी जिंदगी डेडिकेट पढ़ो दिन रात किताबा फिर जवाब दो ऐ जबान मुंह ये नहीं करने के लिए आ जाते हो इतने बड़े फन्ने खान जमाते अहमदिया का इन्होंने उठाया हुआ है जी अपने कंधों के ऊपर बोझ और किसने तुम्हें दी है ये ड्यूटी यार
दिखाओ मुझे खलीफा वक्त का अपना खत कि यार हाँ भाई तू तबलीग कर, तू बड़ा सोहना बोलना यार, तेरे को बड़ा इल्म है, ते तेरा प्यो दादे बड़े वड्डे सहाबी सन, ते रसूल अल्लाह दी मोहर लगी उन्हां दे पिंडियां दे उत्ते। आप एंजॉय करें, वो तो क्यों ना एंजॉय करें, यस दे शुड। हुसैनी साहब सबसे ज्यादा एंजॉय कर हुसैनी साहब। यार हुसैनी साहब को छोड़ो तुम, उनके पीछे क्यों पड़े, उनका कोई कसूर है इसमें? हुसैनी साहब कह रहे कि अहमदी लड़न दे ने हुन जो मर्जी करी। तो अहमदी आपस में क्यों लड़ते हैं? नहीं जो बंदा तुर गया तुसी क्यों हुन ओदे ते ना तो तुर गया तो तू शुरू हो जाएगा हुने। नहीं मैं तो नहीं शुरू उससे होगा, पहले मैं तो तुम चुप लड़ करान रहे थे दिया। उसके साथ आईजी पंजाब के साथ एडे हाजी भी बन गए हो। मुझे नसीहत करने लगे हो, पहले आपस में नहीं, तो मैं एक तो फिर अपना किबला कर लो। मसला वही हल करना बम्बास्टक साहब, बाकी तो नहीं मेरे को। आहो तुम पहले अपने मसले हल कर लो ना, फिर मुझे शीशा दिखाना। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਨਾ ਸ਼ੋਰਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, मेरे को बहुत दुकाना है, मैं बंटवानी करता हूँ दुकानों के साथ। जो 6 दुकाना लिया क्यों नहीं गई वापस फिर? जैसे कि मैं तेरी भैन ने निकाह करना थे उन्होंने देने नहीं भाई चा। बस करेंगे मिस्टर वैसे बस करना है अब आपने तो इस ब्लडी कंट को मुंह बंद कराओ ना इसको, इसको वर्बल डायरिया हुआ है। वो ये सारे पेंडू लांती आ जाते हैं, पता नहीं कितों कितों केड़े केड़े चक तो आ गए ने, तो इधर आके बकवासें करते हैं ये। तो 11 भाई तुर गया फिर छोड़ दे छड़ दे 11 भाई की ऐसी की तैसी। एक मिनट छड़ दे 11 भाई अच्छा मैनू तो किसी गल तो हासा नहीं आया, तो हुणे आया जेड़ा तुसां आख्या ना केड़े केड़े चक तो उठ के आ गए मैं क्या वो जेड़ा तुहाडे दादू साहब दा वाकया है वो तो ये पेंडुओं ने गंद डाला हुआ है यार, वो तो ईमान अफरोज वाकया वो तो बड़ा अच्छा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ बुराई बस कर देना यार। ये चक 302 गाफ बे उथों उठ के बटवानियां करते करते आ गए ने, जर्मनी टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना आ गया इन्हां ते गल्लां ज़बानें इशू हो गई हैं इनको। मैं बड़ी चंगी गल करना, मेरी सुनो हुसैनी साहब, देखो मेरे को टाइम नहीं हैगा। अस्सलाम वालेकुम बस साहब, मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे बस एक छोटी सी बात एक करनी है। अगर मुझे एक कोलीग की कॉल आ गई थी, मैं इजाजत चाहूंगा। और इस दौरान मैंने एक मैसेज देखा है जिसपे एक और उन्होंने बात की है खुरम भाई ने, कि खुरम भाई कहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा कि वो बिल्कुल हिंदू हो गए थे, अमली तौर पर उन्होंने बोला कि उनकी हरकत ऐसी थी जिसका एक रेफरेंस है कि वो कजन मैरिज को गलत समझना। जैसे मैंने पहले बात की थी कि होते मुसलमान ही हैं, चूंकि कायम में लिटिल बिट डिफरेंस की वजह से सब कुछ हमें सुनना पड़ता है। दिन में मैं पता नहीं कितनी दफा मुर्ताद सुनता हूँ, लोरी सुनता हूँ और ये सारा कुछ, तो उस तरह की वो कैफियत है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अमली तौर पर हिंदू बोला था, ये मैसेज में जो लिखा हुआ है। तो बाकी कह रहे हैं कि मैं डिटेल में खुद से बनाऊंगा एक वीडियो, इनके बातों के जवाब दूंगा, तो तब तक इस पे इस तरह का कोई झूठा प्रोपेगेंडा ना करे, क्योंकि उनका कहना है कि इन्होंने भी बहुत सारी गलत बातें की हैं, मंसूब की हैं या ट्विस्ट किया हुआ चीज़ों को। तो और मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने मेरी निकाल को रखा, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं कोई रेलिवेंसी लग रही है जवेरिया वाले मामले में भी। तो आई डोंट नो मोहम्मद अहमद साहब ठहरे यहाँ पे, अगर आमिर नज़ीर ने गलत बातें की हैं उसको मौका किसने दिया है? उसको किसने मौका दिया है? मजहबी बहसों में ऐसे ही होता है। क्यों वीडियो ऐसी बनाई है अनऑथेंटिकेटेड एंड अनकन्फर्म्ड? इसका आंसर मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो बस फिर चुप रहे आप, वो खुद ही आके आंसर करे। मैं तो जो तमाशा क्रिएट होने लगा था उसको काम डाउन करने की कोशिश की और मेरा ख्याल है मैं उसमें कामयाब हो गया। अच्छा नहीं लग रहा आपको? चले लगा दें आप। अंकल मुझे इजाजत है, मैंने वो हदीस पढ़ी। मोहम्मद अहमद भाई एक $1000 का ना हुसैनी साहब ने भी चैलेंज किया है। हुसैनी साहब अब वो सॉर्ट कर रहे हैं, मैं इधर पहुंच गया हूं। मैं आप मुझे बता दें कि ये ठीक है, इस पे आप चैलेंज करना चाहेंगे कि मैं लेट नाइट में आऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ फिर मुझे बता दीजिएगा। अभी आप अंकल से बात करें, ठीक है? हाँ जी जज़ाकल्लाह। ये है कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह कि अब मैं सही समझा, मुझे बता दीजिएगा कि आमिर नज़ीर साहब ने कभी गाली देने में पहल नहीं की। अब ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ठीक है?
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? हुसैनी ਸਾਹਿਬ ਨੇ $1000 ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ? तो पूछ रहा हूँ ना हुसैनी साहब, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਉਹ ਭਾਈ फिर ना दावे करो, फिर खामोश रहो, बस इतना ही काफी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये चैलेंज करना चाहेंगे कि आमिर केड़े चक चूट के हैं सिकर, तू केड़े चक चूट के सिकर? एक मिनट वेट करो यार, तू सिकर एक मिनट वेट करो यार। चक नंबर 302 गाफ बे। सनी भाई मैंने आपसे कल 5 मिनट टाइम लिया था। टू सिकर प्लीज लीव इट यार, टू सिकर लीव इट प्लीज, म्यूट करें जरा। जी सनी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सनी भाई आप चीजें सारी ठीक हो रही हैं, तो एक मैंने आपसे कल टाइम लिया था या तो उसके मुताबिक मैं बात करना चाहता हूँ। सर मैं कोई ठीक है टेक ओवर कर लेने दे सैनी साहब सारे केस नो। मैं परसों भी इन्हें टेक ओवर कर लिया सी, ये टेक ओवर कर लेंदे जे गल नु इन्हां नु डक लियो। नहीं मैं अमर साहब मैं नहीं करता, मैं ना तबलीग करता हूँ। मैं जो चीज मुझे यहाँ पे कोई एलिगेशन उठता है उसका जवाब मैं जाके देखता हूँ, फिर मैं उसको बताना चाहता हूँ सबके सामने। ठीक हो गया। चलें जी, ये मैं पढ़ने लगा हूँ भारत। मैंने इस कसीदे में जो इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु की निस्बत लिखा है या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत बयान किया है, ये इंसानी कार्रवाई नहीं। अगला फिक्रा देखना, खबीस है वो इंसान, खबीस है वो इंसान जो अपने नफ्स से कामलों और रासत बाजों पर जुबान दराजी करता है। मैं यकीन रखता हूँ कि कोई इंसान हुसैन जैसे, हजरत ईसा जैसे रासत बाज पर बदजुबानी करके एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं ये आपने पढ़ लिया ना कसीदा से पहले, अब मैं पढ़ने लगा हूँ वो कसीदे का शेर। इंसानी कार्रवाई नहीं, इसका क्या मतलब है? मैं इतना, मेरा सरफेस नॉलेज है, मैं इतना नहीं। अगर आप एक बात पढ़ के सुनाने लगे हैं, आपको नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है? वो सब ने समझ लिया है। ये इंसानी कार्रवाई नहीं, इसका मतलब जानते हैं क्या है? अब मैं असल में मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं क्या नाम है। तो वैसे ही मुझे भी ये लव लेटर भेज दें लिख के, भाई ये उधर मिर्जा साहब ने फलाने सफे पे भेजा हुआ लिखा हुआ है। अभी कसीदा अगर आप खुद नहीं जानते कि तहरीर में क्या लिखा हुआ है, आप मुझे पढ़ आप वो कर दें, क्योंकि मुझे सरफेस से नॉलेज है। एजाज अहमदी में से आप पढ़ रहे हैं ना? जी बिल्कुल वहाँ से पढ़ रहा हूँ। एजाज अहमदी में डिस्क्लेमर है। जिल्द नंबर क्या है ये? 19वीं जिल्द नंबर है, एक सेकंड में 19वीं जिल्द 19 है, ठीक है। नहीं ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? एजाज अहमदी। सफा क्या है इसका? सफा नंबर क्या है? सफा मैं अभी निकालने लगा, मैं पहले वो पहले आप पढ़ रहे थे बगैर सफे के, तो सफा निकाल लगा। पहले आप बगैर सफे के पढ़ रहे थे, अब एक सेकंड ऑनलाइन था तो अभी मौका दे सनी साहब, आपने टॉन जरूर करना है। जी 149 जिल्द नंबर 19। सॉरी वो कहते हैं मैंने इस कसीदा में जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत लिखा है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत बयान किया है, ये इंसानी कार्रवाई नहीं, खबीस है वो इंसान जो पता नहीं सी ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ है नहीं मैं म्यूट करो इन्हां ਨੂੰ। रिसेप्शन फकिंग ऑफ ओवर यूके तो आ गए ने, ये भी पता नहीं चक 302 गाफ दे तो ना ते सीधे यूके आ गए ने, तो हुन इन्ना नहीं पता मैं गांव से आने में क्या है, मैं इन्ना नहीं पता मैं टिकटॉक ते कॉल पाई है। मेरे जो वाले साहब हैं, मैं खुद भी, हमारा गांव से ताल्लुक है, इसमें क्या है? यार गांव मेरा भी गांव है, पर जदू बंदा ब्राड दी कॉल पांदा है, यूके बंदा रहंदा होवे, तो नहीं पता मैं कॉल पाई उधर पाउंड फटने शुरू कीते ने। गांव का कहना ये कोई मतलब उसको अब ये कहना कि बहरहाल ये लफ्ज कहना कि गांव से है, तो ये तस्वीर थोड़ी है, मतलब ये यार टिकटॉक मैनू पता है मैं यूके च हां, मैनू पता मैं यूके च हां, जेड़े चर्च में आए के होस्ट ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ जी सनी भाई एक सेकंड, उससे पहले है तुमने हुसैन को तमाम अंबिया से अफजल ठहरा दिया।
सच्चाई की हदूदों से आगे भाई इंसानी कार्रवाई का मतलब बता दें सिर्फ। अच्छा, अभी शेर पढ़ने लगा हूँ, शेर का तर्जुमा सनी भाई सिर्फ आपने करना है। ओ सदर साइड साहब मेरे मोहतरम आगे जाने से मैं आपसे बात करने दे। अच्छा बात सिर्फ तकरीर करनी, समझे क्या लिखा हुआ है? ये मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ उसको। वो कहते हैं मैंने इस कसीदा में जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत लिखा है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत बयान किया, यानी जो कसीदा बयान किया है ये इंसानी कार्रवाई नहीं, कसीदा लिखने में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है जी। आगे कहते हैं कि खबीस है वो इंसान जो अपने नफ्स से कामलों और रासबाजों पर जुबान दराज करता है। मैं यकीन रखता हूँ कि कोई इंसान हुसैन जैसे या हज़रत ईसा जैसे रासबाज पर बदजुबानी करके एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता। और वहीद मन आदा वलियन ली 10 ब10 तो उसको पकड़ लेता है। बस मुबारक वो जो आसमान के मसाले को समझता है और खुदा की हिकमत अमलियों पर गौर करता है और मेरी तरफ से सिर्फ 10,000 के इनाम का वादा नहीं, बल्कि वो शरीर जो गालियां देने से बाज नहीं आता और ठट्ठा करने से नहीं रुकता और तौहीन की आदत को नहीं छोड़ता और हर एक मजलिस में मेरे निशानों से इनकार करता है, उसको चाहिए कि ये मियाद मुकर्रर में इस निशान की नज़ीर पेश करे, वरना हमेशा के लिए और दुनिया के इनकता तक मुफस्सलत लानतें उस पर आसमान से पड़ती रहेंगी। मतलब वो कह रहे हैं मेरे मुकाबले में कसीदा लिखे। बिलखसूस मौलवी सनाउल्लाह साहब जो खुद उन्होंने मेरी निस्बत दावा किया है कि इस शख्स का कलाम मोइज़ा नहीं, उनको डरना चाहिए कि खामोश रह कर इन लानतों के नीचे कुचले न जाएं। और वो लानतें ये हैं, फिर उन्होंने ये 10 लानतें लिख के वतिल का अशरतुन कामला लिख दिया। मैं शेर पढ़ने लगा हूँ, शेर का तर्जुमा आपने करना था नहीं भाई? नहीं मैंने नहीं करना, मुझे नहीं आता, आप खुद ही तर्जुमा करें जी। उससे पहले उन्होंने लिखा है तुमने हसैन को तमाम अंबिया से अफजल ठहरा दिया जी जी, सच्चाई की हदूदों से आगे गुजर गए, अल्लाह देख रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे जो शेर है, शेर जो है उसका तर्जुमा मैं चाहूंगा कि सनी साहब आप प्लीज करें, क्योंकि आप तर्जुमा तो पढ़ रहे हैं, वो तर्जुमा पढ़ दें जो पढ़ना है आपने। नहीं सनी भाई तर्जुमा जो है ना तो आपने वो जो 5 मिनट तक खिताब करना था वो हो चुका है या अभी कर रहे हैं? वो जारी है सनी भाई बात यह है कि आप बात आगे शेर सुने जरा। सुनाए, बिल्कुल शेर भी सुनाए, नसर भी सुनाए, हम सब कुछ आपकी बातें इस्लाम में अहदल मसाइब लदाए नफाहतिल मसिक के ओ ना 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 पढ़ो, तुसी तर्जुमे पढ़, तो डेला नहीं अरबी है, तर्जुमा पढ़ो। ओके, बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है। हाँ, कस्तूरी की खुशबू के पास गो का ढेर है। ठीक है, इस तरह ही ये उन्होंने नीचे हाशिए में लिखा है। ये शेर का ये मतलब है कि जब शिरक का जायजा था, शिरक जायज था और काफिरों ने सिर्फ अपने मबूदों की हमायत में जो हसैन की तरह गैर अल्लाह थे मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया, जिस पर आखिर मुसलमानों की इजाज़त हुई कि अब तुम इन मुशरकों के मुकाबला करो। तुम इसके मुकाबले की क्या जरूरत थी, बल्कि मुशरकों को कहना चाहिए था कि तुम अपने शिरक में हक और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह गलत है। अब तुम मेहरबानी करके जंग छोड़ो, हमें दुख ना दो, हम तुमसे मुकाबला तुम्हारे कोई जंग नहीं करते। हम मानते हैं कि गैर अल्लाह से मुरादे मांगना सब सच है। ये था असल। सही है। एक उनका शेर है, हर तरफ कुफ्र अस्त जोशा हम चो अफवाज यजीद, दीन हक बीमारो बेकस हम चो ज़ैनुल आबिदीन। तो मुख्तलिफ कैफियत होती हैं, शेरों का अपना एक अंदाज होता है, उनको नसर के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बस इतनी बात है। अगर आप माइंड ना करें तो अपना थोड़ा सा इस शेर के ऊपर थोड़ा सा अपना रिजल्ट निकाल दे, क्योंकि ये अक्सर इल्जाम लगता है और यहाँ पे ही लगता है। अगर आप माइंड ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, मैं कोई माइंड नहीं करता किसी बात को। फोन ले लो, फोन पे पूछो तो सही दसन दे। नहीं, मैंने तो पढ़ लिया है, कि वहाँ पे मैंने तो पूरा कसीदा पढ़ा है। 11 भाई साहब
उन्होंने वो शिरकिया अकीदे को कहा है कि इस्लाम को खुशबू की कसूरी है, और ये जो अकीदा रखते हैं कि इमाम हुसैन अंबिया जो हैं वो इमाम हुसैन उनसे बड़ा मकाम है, ये जो अकीदा है वो किसी बंदे की कैफियत कि वो एक अच्छी चीज और बुरी चीज में तमीज ना कर सके, उसके लिए एक मुहावरे की बात है, बस छोड़ दें उसको। वो इस तरह कहना पड़ता है बाद दफा कि इतनी अच्छी चीज के पास ये बुरी चीज, ये दोनों आपस में कोई निस्बत तो नहीं ना रखते। इस तरह की मुतजाद बातें सामने लाकर मिसाल दी जाती, ये है बात। अच्छा 11 भाई साहब ये दसो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ Hier? Okay, bitte schön. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਨ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ, ਸਬਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਬੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, तो जिस वक्त मैं मुसलमान हो गया तो हया इतनी, तो अदब इतना है कि मैं मुंह नहीं कर सकता। समझो गल, दो गल्लां च पूरी हिकमत करना नहीं। बात ये है सानी साहब जी जी कि मेरे वालिद मोहतरम जो थे जी जी वो शरकपुर वालों शरीफ वालों के बहुत बड़े उनके मुरीद थे। अच्छा, बड़े डाई हार्ट किस्म के। और मैं पीरों की नस्ल में से हूँ, अभी भी मेरे खानदान के जो बुजुर्ग हैं ना, उनके मज़ारों के ऊपर ये चादरें शादरें चढ़ती हैं, ठीक है ना। उन तमाम चीजों को छोड़ के, उन तमाम गंदगियों को और बिदतों को छोड़ के मेरे वालिद साहब जमात अहमदिया में आए, और ये 11 बाई के लिए बड़े तकलीफ का बायस है। नहीं उन्होंने भी ये बात मेरा इसको मकसद सुन पसंद लो, नहीं आई। मेरा मकसद सुन लो। मैंने तेरा मकसद नहीं सुनना, तू पहले भी एक तेनू सुनान कौन दिया, फिर उसी रास्ते पे आया। यार सैनी साहब ने मैनू चुकिया, सैनी साहब पूछ रहे ने, ना कर ना कर, नहीं साबर साहब अगर कोई आदतन मेरे नाल सुन लो सैनी साहब, अगर कोई आदतन मेरे नाल कोई नफरत रखदा है, नफरत दे विच मैनू टोका टाकी करदा, जिवें वाटर साहब ने वो मेरे नाल कई बारी टोका टाकी करदे ने, मैनू आना कोई मसला नहीं यार, व्हाट्सएप खैर है उन्हां नूं होरे मेरे नाल कोई कह लो कोई छेड़ है या नफरत है, कोई मसला नहीं। लेकिन बंबास्टिक सब हर किसी ने करदे ने, ठीक है, हर किसी ने करदे ने। इन्हां ने अपनी आदत बना ली है कि कोई भी बंदा बोले ओदे मुंह च अपना मुक्का घसेड़ के आंदे ने चुप कर तेरी हैसियत ऐसी, तू बोलेगा मैं कहते बैठा, तू बोलेगा तेरी हैसियत ऐसी, चुप कर। क्योंकि ਇਹ ਰਵਈਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, बहुत सारे लोगों ने इतने बैठिया इस रवैये तो तकलीफ होती है। जिसको तकलीफ होती है उसने मुझे यही ताना दिया है जो तुमने दिया। तो मैंने जानबूझ के दिया है, जानबूझ के दिया है। जब भी आप मुझे तकलीफ, जब भी आप मुझे तकलीफ देंगे मैं आपको तकलीफ वापस, कोई बात नहीं, मैं कहना गाल ही कोई नहीं, तू दोबारा आजमा मुझे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आप हर बार मुझे गालियां नहीं करनी, मैं हर बार आपको यही तकलीफ और शहर का रहने वाला मेरे मसले ही कोई नहीं, मसला कोई तो फिर घबराना नहीं, हाइपर होके फिर गालियां देने लग पड़ते। मैं क्या मैं तो दूंगा तुझे, फिर तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, वो समझ लो फिर तू दाखिल हो जाएगा, आपस ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪਏ ਹੋ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਖੁਰਮ ਨੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਖਮਾਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸਾਲਾ ਸੀ। ਨਸਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਲਕ ਮਲਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ? ਆਏ ਸਮਝ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਸਹੀ ਮੇਰਾ। ਜਾ ਖੰਗ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰਿਆ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ੋਰਿਆ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਪਿਓ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੱਚਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਲੀ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗੈਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। करे सॉरी किसने सॉरी किया? मैंने कब करे सॉरी? ये सॉरी नहीं करेगा, ये हमेशा बगैरतियां ज्यादा करेगा। ये बगैरत इंसान, बगैरत बाप का बच्चा है, वो ने भी सारी उम्र बगैरतियां किया। अहमदियों के मुंह पे कालक मली, ये भी बगैरत है, ये भी बगैरत बाप का बगैरत बेटा है, बगैरत बाप का। वो तो वहीं रहना था, और जहाँ पे पीरी मुरीदी करता था ना, जहाँ पे पीरी मुरीदी करता था वहीं पे मरना था, वहां पे अपने अब्बे को भी मारना था। हमारे अंदर क्यों गंद लेकर आ गए हो? तेरे प्योर वहीं पे रहते, वहीं पे रहना था, वहीं पे रहना था, बगैरता वहीं पे रहना था, वहीं पे रहो। जहाँ का गंद था, वहीं पे रहता तो चुप है कुत्ते के बच्चे। मैं अभी म्यूट लगा रहा हूँ, गाला काट अब्बे दी सुन्नत पूरी कर, अब्बे दी सुन्नत पूरी कर, काला काट। तेरे अब्बे दी हरकत तो, तेरे अब्बे दी हरकत तो तेरियां आदतां मिलदियां ने। जी मसरूर भाई, जी मसरूर भाई, गल ये है कि मैनू नहीं पता हुण मेरी दोनों गल हौसले ना सुनना दोनों ही। मैं उन्हां नूं मैनू भी वो टोकदे ने, मैं कदी माइंड नहीं कीता। वो बड़े भरा ने मेरे, तुसीं भी भरा हो, ठीक है। ते वो अक्सर रोकते ने, वो साडे वड्डे ने एहतरामन जिहड़ा असीं सिੱਖਿਆ ਉਹਦੇ जवाब दे विच असीं रुक जंदे आ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ? ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। मैं नहीं बोलन देगा। एक मिनट, ये पागल है, ये टका है टका। एक मिनट, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ लड़ांगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। आपकी बात एक मिनट के लिए चुप करके सुन। नहीं सुनेगा। आप उधर खामोश रहें जरा। जी यारा भाई साहब, आप बताए कि अच्छे अंदाज से बगैर उनको टारगेट किए हुए कि आपको उनकी किस बात से तकलीफ पहुंची है, क्या कौन सी उन्होंने ऐसी बात कर दी थी? मैं बता दूं कि भाई आपको वो बुरी लगी है। जी बात ये है कि अगर ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर ये काम करें ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी बात को टोकें, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने हर बार मेरी बात को टोका है, हर बार। जब भी मैं बोलने लगा हूँ, जब भी को बात करने लगा हूँ, इन्होंने मुझे टोका है, इन्होंने हर उस इंसान को टोका है जो यहाँ पे आके अहमदी बात करना चाहता है, हर इंसान को। ठीक है, ये बात मैंने सुन तो ले, पूरी तो बात सुन है। मेन रीजन है कि उन्होंने आपको बार बार टोका। ये अगले बंदे की डिसरिस्पेक्ट होती है। मंसूर साहब बताएं, आपको कभी टोका? जी नहीं टोका नहीं है, वैसे बड़े भाई की। फिर ये क्यों हर किसी के बिहाफ के ऊपर उनका स्पोक्स पर्सन बन रहा है? नहीं ये देखो, ये सबको इसने टोका है। ये पंचायतिया बनने की कोशिश करता है बगैर वजह तो। ये देखो, ये हर किसी को तकलीफ, हाँ तुझे तकलीफ, तेरे में छितर मेरी
पहुंचाने की कोशिश करता है, जो भी बात करता है उसको रोकने की कोशिश करता है, अपनी बात करने की बजाय ये सब प्यो पुत्र ही इंज दे बगैरत सन, ये प्यो पुत्र ही इंज सन। मान जो मसरूर साहब फिर देखो ना मेरी गल सुनो, जो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਰਵੋ ਨਾ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ लेकिन ये बड़े खामोश रहे, भी बड़े सातमंद बड़े अच्छे बच्चे ने। हो जानियां ने कमियां पेशियां, इन्होंने अखीर तो उन्होंने बड़ी मादरत की और फिर उन्होंने भी इन्होंने प्यार किया, उन्होंने भी कहा अच्छा कोई गल नहीं। फिर बड़ी कुछ पता नहीं फिर क्यों दोबारा उखड़ गए ने। मेरी दोबारा इन्हों की खिदमत चलता है, इस तरह ना करो तो आपस में ना लड़ो। तो वसीम साहब साडे जिहड़े ने वो कहंदे ने मैं 52 साल इतना मटीरियल नहीं सुनिया तो देखिया जिहड़ा इत्थे चंद 52 दिन 52 दिन कहने चाहिए या 52 घंटिया सुन लिया है। वसीम साहब क्या हाल है, तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। ये मैंने ऐसे कहा था मेरी उम्र जो है वो 52 साल है और 52 साल में मैंने इतनी गालियां नहीं सुनी और जितनी के लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है क्या कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ, देखिए ये जो ब्राड का या इसका मकसद तो ये होना चाहिए कि भाई हम कुछ सीखे। बेशुमार लोगों के मुख्तलिफ एंगल हैं सोचने के, उनके पास नॉलेज है, तो मकसद तो सिर्फ यही होना चाहिए कि बगैर मानना जरूरी नहीं है, चलो कुछ हासिल हो जाता है, कोई भी शख्स है कैसा भी है तो। लेकिन जो फील आप देखिए ये जो टॉपिक है जैसे ये जो मुझे क्योंकि नाम नहीं मैं सुनता हूँ हर रोज, लेकिन ये जो मोहतरम बम्बास्टिक साहब चले गए हैं तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि भट्ट साहब तुसी साडे वालियां दे हो जाओगे तो यहाँ तुसी इन्ना ले राज हो जाओगे। तो वो मैंने दूसरा मान लिया, मैंने कहा नहीं यार ये ठीक है क्योंकि मेरे लिए मुमकिन नहीं है ऐसा होना। और असल मकसद तो ये है कि भाई हम सीखना चाहते हैं, इसलिए ब्राड पे आते हैं, टाइम लगाते हैं। मुझे तो ये हैरानगी है कि लोग इतने फारिग हैं या इतने घंटे उखड़ जाती है। बड़े अच्छे दोनों ही अच्छे हैं। मुझे अगर बात कर लेंगे तो मुझे ये है सब आपको सूट नहीं करता, बार बार ना दोहराएं बात को। हाँ जी, आप स्कॉलरली बंदे हैं। हाँ जी, स्कॉलरली पर्सन। मैं वसीम साहब को कह रहा हूँ कि स्कॉलरली पर्सन, तो इस तरह की बातें इसको इग्नोर कर देते होते हैं। हाँ जी, नहीं सर मैं ऐसे इग्नोर ही करता हूँ, इसलिए तो मैं सुनता हूँ नीचे। दोबारा इस पे ना बात करें वसीम साहब को। नहीं मैं सुनता हूँ, वसीम साहब को बात मैं सुनता हूँ सर, कोई ऐसी बात नहीं। मैं सुनता हूँ, मैं इसलिए नहीं कहता, मैं सिर्फ बहुत कम कभी बोलते बेचारे। मैं सिर्फ इसलिए सिर्फ जैसे अभी क्योंकि ये टॉपिक अभी चल रहा था जी बड़ी काफी दिन से, जो मालूम नहीं मुझे नजीर साहब उनका नाम है या ये जो टॉपिक मौला हसन हुसैन का और मौला अली का, तो उन्होंने मुझे है कि देखिए उन्होंने जो हजरत साहब मेरे सामने रूहानी सन पढ़ी है, मेरे सामने ये किताब खुली है, तो उन्होंने वो हवाले दिए, ठीक है वो हवाले में, तो आप इंटरप्रिटेशन सब कुछ ऐसा कर सकता है। तो मुझे ये है कि अभी जो साहब पहले आए थे वो जो 5 मिनट कहना चाहते थे वो पता नहीं क्या लेके आए हैं क्या नहीं लेके आए। नहीं, तो कल कहा था कि मैं 5 मिनट तक कोई लेक्चर दूंगा, तो फिर कोई थोड़ा सा उन्होंने दिया और फिर दरमियान में कोई मसरूफियत हो गई तो फिर शायद चले गए वो। तो टी अहमद साहब आ गए। टी अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। टी अहमद साहब की हाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं क्या तुसी आमदे हो ते सानू मारूम रखते हो ते अपने नेक पाक गल्ला सानू सुनाओ, चंगियां गल्ला समझाओ। असल में होता है ये पिछले 2-3 दफा ये आपका बहुत करम है खाकसार पे जी कि लड़ाई और करते उनके साथ मुझे भी उतार दिया जाता है, तो मैं भी अच्छा ये तावेदार बच्चे की तरह नीचे बैठ गया था कि ठीक है भाई उतार दिया। नहीं मैं मादत खाऊं कैसी? नहीं माजरत नहीं करनी को नहीं हो जाता इस तरह। मुझसे बेवकूफी हुई है? नहीं कोई बेवकूफी नहीं हुई, पिछले 2-3 दिन यही होता रहा मेरे साथ के लड़ाई कहीं और होती है, बोलचाल कहीं और होती है, वो साथ में वो बाद दफा सारी मैंने कहा वो एक्स्ट्रा शफकत होती है साहब।
एक्स्ट्रा शफकत होती है माशाल्लाह। सो बड़ी बड़ी मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਗੋਈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ? नहीं नहीं अच्छा नहीं गया, ठीक है नहीं गया। ठीक है। ये आपको मेरे वेयर अबाउट्स की कैसे पता चल गई? मेरी बोली से? बस इस तरह ही कोई ना कोई ਤੁਹਾਡੇ या कोई मोकल छोड़े हुए? नहीं कोई मोकल कोई नहीं। नहीं अगर मोकल है तो बता दे, खाना शाना खिलाए उनको। कुछ कहना नहीं, खाना शाना बैठ के नाश्ता करते, हाँ दोपहर का खाना भी खा लेंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो है, ये तो बड़ी अच्छी गल है। ये मंसूर साहब ਨਾਲ मुलाकात हो गई है ਤੁਹਾਡੀ कि नहीं? जी जी मंसूर साहब से मुलाकात। मंसूर साहब नहीं मुलाकात मतलब कि फिजिकली मुलाकात नहीं। अच्छा बस सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं सनी साहब से डायरेक्ट हो गया था। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अली अकबर साहब भी तशरीफ ले आए ने। अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैनी साहब ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਵਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। नहीं भी मैं तमाशबीन नहीं है। अली वाला साहब ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਯਾਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। कह रहे ने मंसूर साहब मेरे ना मुखातब ने मैनू कह रहे ने सर, वो मैनू कह रहे ने कि अगर उन्होंने कोई रौनक मेला दिखाना चाहिए तो दोबारा दिखा दिया जाए। ठीक असल जी मंसूर साहब ने टैक्सी का भी प्रेशर होता है ना। नहीं हुसैनी साहब मेरी गल सुनो, मैं मानना वा गल इहदे च कोई शक नहीं, ठीक है कि मैं एक्स्ट्रा अल्फाज बोलना वा ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ठीक है, लेकिन मैं वो मजबूरी ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਇਮਾਨ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਮਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੋਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਆਇਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਆਇਆ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਤਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੜੋ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ? ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ।
ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵਸੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਸੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਓਹੋ ਜਾਨਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਜਾਨਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जमात अहमदियत को खैरबाद किया है। हाँ मुझे मालूम नहीं है बसरा साहब कहाँ रहते हैं वैसे अगर नहीं मैं आपको पर्सनली तौर पे नहीं मिला हुआ लेकिन हाइलबर्ग से हो बसरा साहब हाँ मुझे पता है आपके बारे में कौन नहीं जाता। देखें जो मशहूर पर्सनालिटी होती हैं वो मशहूर ही होती हैं, उनका ना भी वो किसी को जानती हो लेकिन उनको लोग जान लेते हैं। तो आपको जानते हैं हम, बहुत शुक्रिया जनाब। आपकी फैमिली को जानते हैं, सारे खानदान को जानते हैं बहरहाल सिर्फ जानते हैं, ठीक है, उसके अलावा कभी मिले नहीं किसी को। वो बस इत्तेफाक नहीं ऐसा होगा क्योंकि फ्रैंकफर्ट आपको मालूम है वैसे कोई ऐसा रूटीन नहीं होती, तो हाइडलबर्ग नहीं है। वैसे हम दोस्त काफी जानते हैं, फ्रैंकफर्ट से भी जानते हैं और सदर अंसारुल्लाह जर्नी पहले भी थे, वो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, प्यार करते हैं हमसे, अभी भी बहुत प्यार करते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे वहाँ पे जो सालों साल से हमसे मुंसलिक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बसरा साहब ये कहते हैं आने से सदर सिद्धांत कटन दे। अस्सलाम वालेकुम सनी साहब। जी वालेकुम जी मैं नीचे बैठता हूँ, अली अकबर साहब को उठा लें, वो एक तो आलम बंदे हैं, उनके पास हदीसों का कुरान का भी इल्म है, तो यहाँ पे जो आज भी मसले छिड़े हैं, कल भी छिड़े, परसों भी छिड़े थे, उनके पास जवाब है, आप उनसे लें। नहीं वो तो तशरीफ रखते थे लेकिन वो मसरूफियत की वजह से उन्होंने हमारी कोई भी तरबियत नहीं की, लेकिन आपके पास वो आपको ही टोर गए ने जमात का इल्म है, आप हमें क्यों नहीं सरफराज करते उससे, जो अच्छी अच्छी बातें हैं तबलीग अहमदियत करें हमें। मैं तो खुद ज़ेरे तबलीग एक अरसे से चला आ रहा हूँ और मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि मुझे तबलीग करें। और ज़ैनी साहब ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਬਲੀਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं समझनी है जी। सैनी साहब मैंने इज्जत के मारे ये बात नहीं की, मेरी शर्म के मारे कह लो मैंने ये बात नहीं की, बात उन्होंने कर दी है। बहुत सोहनी गल कर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਪੜਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉਮਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਯਾਰਾਂ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਯਾਰਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਯਾਰਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ ਕੰਡ ਨੇ ਕੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰਾ ਭਾਈ, ਮਜ਼ਾ ਦੱਸ। एक चीज को याद रखा करो यारा भाई कि जमात और दीन की जो इज्जत है ना वो पर्सनल अना से बहुत बड़ी है। यही हमें कि दीन को दुनिया पे तरजीह दूंगा कि जब अपनी अना की बात आ जाए कि मुझे क्यों रोका और मुझे क्यों बात की है, वर्सेस दीन और जमात की इज्जत आ जाए तो अपनी गर्दन भी कटा दो, छोड़ दो उसको, अपनी अना को उसकी कुर्बानी दे दो, खत्म कर दो, इसी में भलाई है। क्या बात है। हाँ चाहे मैं हूं या कोई और हो, दीन से ज्यादा और जमात की इज्जत से ज्यादा और हुर्मत से ज्यादा कोई भी चीज, हम तो मर जाएंगे, हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, ये जमात इसी तरह ही रहेगी। इसकी इज्जत के लिए और एहतराम के लिए दाई अल्लाह खुसूसी अब्दुल रऊफ साहब ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ
ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਪਸੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ نہیں ملیا۔ دوسری جڑی گل کیتی ہے نا، کیڑی گل کیتی ہے دوسری؟ میں نے یہ کہا ہے کہ آپس میں تم اسی وقت اچھے طریقے سے بات کرو گے جب اپنے دشمنوں کے ساتھ تم اخلاق سے پیش آؤ گے۔ اگر ان کے ساتھ تمہیں غلط اور گند بولنے کی عادت پڑ جائے گی نا، آپس ہوندی ہے نا، اودی وجہ ہمارا جو یہ مزاج گندا اور غلیظ ہوا ہے، یہ ٹک ٹاک کے اوپر ہم نے غیر احمدیوں کے ساتھ ٹاکرا لگا کے متقا لگا کے غلط پریکٹس کی ہے۔ کوئی بچہ ہوتا نا چھوٹا، اس کو آپ نفرت کرنی سکھا دیں کہ چاچے کو لو نفرت کر، پیو کے وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ چاچے سے ہی نفرت کرے گا، وہ پیو سے بھی کرے گا بعد میں۔ ہم نے وہ پریکٹس کی ہے نفرت کرنے کی، گالیاں کرنے کی۔ خلیفۃ المسیح جتنے بھی ہمارے ہیں اور ابھی حضور ہیں، انہوں نے کہا کہ ہرگز کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، کبھی بھی نفرت نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیشہ کوشش کرنی یہ حضور جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بھی بلکہ اپنا اثر اچھا اثر اور سونی صاحب کہنے ہیں کہ کوئی جماعت والا 11 بھائی، سنو منصور صاحب، اور سونی صاحب کہنے ہیں کوئی جماعت والا 11 بھائی کے علاوہ بمباسٹک صاحب کو بھی پھول مار، بمباسٹک بھائی کو بھی۔ ہمیں پھول نہیں چاہیے، 11 بھائی مجھے پھول مارے گا تو مجھے وہ زیادہ پیارا ہے کروڑوں پھولوں سے، اور میں اس کو ماروں گا تو وہ ہے۔ یہ خون جو ہوتا ہے نا، the blood is always thicker than water۔ مار دیتے ہیں پھولوں نا۔ اور میں جو ہے نا، ہم ایک خلافت کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کہ ہم دین کو دنیا پہ، اس کا ہاتھ کے اوپر میرا ہوتا ہے، میرا اس کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے مرضی ہم ہوں پھر بھی خون ہمارا ایک ہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے ہم علیحدہ ماں باپ کے بچے ہیں، لیکن دینی خون جو دین کا خون جو ہے وہ ایک ہے ہمارا۔ میں ایک چھوٹا جا خوبصورت مثال میں بہت گھٹ ہی ویکھدا ہے۔ ایک منٹ ذرا سے چھوٹا جا کمنٹ سی کراں گا۔ اے ایڈی خوبصورت چیز نہیں کہ دیکھو اگر دو بھراواں دے درمیان اختلاف ہویا تو ایسے براڈ تے بیٹھ کے انہوں کتنا پیار ایک دوسرے دے نال بھرا ایک دوسرے نال کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں یار، اسی کیڑے ایک دوسرے دا قتل کیتا ہے؟ اور خلافت کی برکت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہے، یہ صرف خلافت کی برکت ہے کہ ہمیں ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہ سمٹنگ فیکٹر ہے ہمارا۔ ایک سید نصیر شاہ صاحب مدد اللہ العالی جدوں آئے نا ایم ٹی اے دے چیئرمین، تے انہوں نے صاحب دے متعلق ایک نظم لکھی، ایدہ بروح القدس، بڑی اچھی نظم ہے، پتہ نہیں ہو کیسے کو ہوگا تو بھجواؤ تو لگائیے ضرور۔ ہاں ٹھیک ہے حسین صاحب میری چھوٹی جی گل سن لو۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہنا تواڈے سامنے، جہدے وچ او اپنا ساڈے گھومن صاحب نوں تسی جانتے ہو نا، رشید گھومن صاحب؟ بے شک، وہ گل واضح کر دیندے نو۔ ہاں انہاں دے نال گروپاں دے وچ چلدا رہندا ہوندا سی، کہہ لو کہ بحث وغیرہ۔ تانوں پتہ ادوں کئی واری رافضیت تواڈے میرے چ کٹ کے بھری سی اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ تے اس سوال میں کوئی کرنا رافضیاں والا، تے انہاں نے اگوں جواب دینے کرنے، تے میری بڑی نا تلخ کلامی ہو جانی کرنی انہاں دے نال، ٹھیک ہے؟ تلخ کلامی ہو جانی کرنی، تے مینوں نا انہاں نے جلسے تے مینوں ملے، اچھا میں انہاں نوں صرف وہ گلاں دے لحاظ تک عزت لحاظ کریدا سی، جویں ہن تانوں ملے نہیں نا ہے ساری زندگی، ٹھیک ہے؟
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਲਸੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਤੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਬੜੇ ਨਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਟਪਕਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡੀ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੂਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਡੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਦਵੇ 11 ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾ। मैं मेरी जरा अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट की, तो मैं जरा दांत खुजवाऊंगा। जाओ लगे हाथों, कहने सब जमाती एक दूसरे की माँ बहन एक करके दोस्त बन जाएंगे और कसूरवार हुसैनी को करार देंगे। नहीं कोई नहीं हम कोई नहीं, एक दूसरे की माँ बहन, ये शैतान आ जाता है हमारे दरमियान, शैतान का काम है फितना डालना। नहीं सोनी साहब ना मैं दसन दिया है एक दिन, लो सोनी साहब इजाजत दे जी, ठीक है जी मान ला। मैं क्या सोनी साहब इस गल परसों आपस में गल करन दे हाँ कि सोनी साहब ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲ ਸਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਵਾਲ ਸਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਹਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਸੂਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਤਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जी बिस्मिल्लाह। ओ आ गए जनाब रहील अहमद साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फैनी अंकल मैंने ना एक आयत पहले तो ये बताएं, तबीयत सेहत ना ठीक ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। पढ़े आयत, कौन सी आयत पढ़नी है? तबीयत सेहत ठीक ने जी। एक आयत मैंने पढ़नी है और एक हदीस पढ़नी है, ट्रांसलेशन आपने करनी है हुसैनी अंकल, ठीक है? चलो ठीक है जी। क्या आयत नंबर बता दें कौन सी किस जगह से पढ़ रहे हैं? आयत नंबर तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो आयत मुझे मुंह ज़बानी याद है। आयत नंबर मुझे इस वक्त याद है, निकालनी पड़ेगी। मतलब किस सूरत में है, किस कौन सा नंबर है, अगर पता हो तो अच्छा है। पढ़े क्या है? चल वो आयत के लफ्ज़ हैं खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम। हैं जी, आप पढ़ लें। खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम विशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये जी। और एक बकरा की एक हदीस भी है, एक हदीस भी है। हाँ जी जी, हदीस है अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी। अब इन दोनों का तर्जुमा मुझे बता दें आप। जी ठीक है जी। खतमल्लाहु मोहर कर दी है अल्लाह ताला ने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, वाला समिहिम और उनके कानों पर, वाला अब्सारिहिम और उनकी आंखों पर, विशावत वाला अज़ाबुन अज़ीम उनके पर्दे हैं उन पर और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये है इसके माने।
नबी आबादी का तर्जुमा भी करते जी मैं पढ़ देता हूँ। खातमुन नबीयीन वाली आयत का पहले तर्जुमा कर लेते हैं, फिर हदीस का भी कर लेते हैं। खातमुन नबीयीन की आयत ये है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। उसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल हैं। वलाकिन रसूलुल्लाह है व खातमुन नबीयीन, और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। ये है तर्जुमा इसका। इसी आयत इसी इस आयत में आप खत्म करने वाला ले रहे हैं और उस आयत में आप दिलों पे मोहर करने वाला ले रहे हैं। ये दोहरा मायार नहीं है हुसैनी अंकल? ये जो तर्जुमा है ये आपके ख्याल में सही है या नहीं है? ये जो मैंने तर्जुमा अभी पढ़ा है मेरे हिसाब से वलाकिन एक ही होना चाहिए ना। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, एक ही होना चाहिए ना। मैं अभी आपसे सीख लेता हूँ ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं कुछ जिद तो नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन जो है, और लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, ये तर्जुमा सही है या गलत है? इतना बता दें मुझे। नहीं, ये तो मुझे आप बताएंगे ना, क्योंकि हमारे सरकारी मुसलमान जो हैं वो तो इन दोनों आयतों को अलग अलग तर्जुमा लेते हैं। ये तर्जुमा तो सरकारी नबी आबादी का तर्जुमा भी कुछ और। ये तर्जुमा जो है किसी सरकारी मुसलमान ने नहीं किया बल्कि अहमदी ने किया है। तो उसके मतलब क्या ख्याल है? तो फिर वो जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी वो अलग वाली, पहले इसको असल मसला वो बात ये है कि खतमा नख्तमो खितामुन ये लफ्ज़ मुख्तलिफ तरकीबों से कुरान करीम में आए हैं, वो तो अपनी जगह हैं। असल बात तो जिस पे आना है वो खातमुन नबीयीन ही है ना, और खातमुन नबीयीन के लिए आगे फिर हदीस है, आना खातमुन नबीयीन अला नबी आबादी। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबीयीन के मानों को वाज़ेह फरमा दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, और उसका मतलब क्या है? ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो आपने वाज़ेह फरमा दी ये बात। एक जगह अल्लाह के रसूल ने ये भी तो फरमाया ना, एक जगह अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे आप लोगों में। कुरान अल्लाह ताला ने कभी नहीं फरमाया कि मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का रसूल ऐसी बात नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला ने उसे इजाजत ना दी हो। तो जो हदीस कुरान करीम से तईद याफ्ता ना हो, कुरान करीम नज़ूल मसीह का कोई जिक्र नहीं करता। जिन बातों को हम तो फिर हमारे सरकारी मुसलमानों को